Hello, students. This is Nitin here. So we should discuss this nationalism in Europe further. In the last video, I have discussed that how what is the meaning of nationalism and how it emerged in Europe. And now in this video, we would discuss uh, what was the role of French Revolution in the development of nationalism in Europe. Means how French Revolution played a role in this. So we would discuss in this video the changes that came in the society of France after the French Revolution. So we all know that after the French Revolution, like in 1789, absolute monarchy system had been demolished and a democracy was established. Means the power was transferred to a body of French people, a body of French representatives of the third estates that we had discussed. So now we would see the changes. So from the you can see the lines that I have underlined. So I would also like to tell you that you need to underline the same sentences in your textbook, and I would read them and I would explain them. So from the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. So we need to focus this word collective identity. Means nationalism. In nationalism, collective identity is something that is accepted. Means if you talk about a nation, your identification should be collective, right? There should not be a separate identification. Like for example, we'll understand it in Indian term. How in India what happens is, we may be from different social background, but at the end we all are Indians. So this is the collective identity of all Indians, of either me or you or anyone else. We all are Indians first. That is the collective identity. So the same way in France also, this feeling emerged. The idea of la patrie, the means the fatherland, and the la citoyen means the citizen, emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. सो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो आइडिया है ला पैट्री, मतलब द फादरलैंड, मतलब कि जो एक कंट्री है वो केवल एक कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बट उसको हम अपने पिता के समान समझते हैं। उसको, उस भूमि को अपने पिता के समान समझते हैं, अपनी पितृभूमि समझते हैं। यहाँ पे हम पैदा हुए, यहाँ पे हमें मरना है। इस टाइप की फीलिंग का विकास हुआ उस समय के टाइम पे। और द सिटीज़न की भावना, एक मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले किसी के अंदर एक सिटीज़न की भावना नहीं थी कि वी आर अ सिटीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर टेरिटरी, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। सो ये सारी फीलिंग्स कब आई? जब फ्रेंच रिवोल्यूशन और उसके बाद जब नई गवर्नमेंट बनी, उसके थ्रू ये सारी फीलिंग्स आनी शुरू हुई। अब आगे देखिए क्या हुआ। नेशनलिज्म की दिशा में आगे बढ़ने के तौर पे और क्या चीज़ें हुई फ्रांस के अंदर। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राइकलर, वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। जो पहले का, जो उनके महाराजा के टाइम का जो रॉयल स्टैंडर्ड था, उसको हटा के अब एक नया झंडा, ट्राई कलर, वो फ्रांस ने अपनाया। द स्टेट्स जनरल was elected by the body of active citizens and renamed the नेशनल असेंबली। ये हम लोगों ने पढ़ा है नाइन्थ क्लास के अंदर, जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ 1789 में। तो जो मोनार्क था वहाँ के, लुई 16, उनकी जगह उनको हरा के किसको मिली सत्ता? एक बॉडी थी थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसको हम उन लोगों ने नाम दिया था नेशनल असेंबली का, जिन्होंने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। तो उस नेशनल असेंबली के पास पावर आई। तो न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टायर्स कोमेमोरेटेड। मतलब जो वहाँ के जो शहीद थे, मार्टायर्स मतलब जो शहीद लोग थे, जो देश के ऊपर कुर्बान हुए थे, जो क्रांति में मारे गए थे, उन लोगों को याद किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। और ये सब किस नाम के हुआ? किसके पीछे हुआ? राष्ट्र के नाम पे हुआ। अ सेंट्रलाइज, अगले अगले लाइंस, ये अगले पॉइंट्स है। ये सारे दीज आर ऑल द पॉइंट्स दैट एक्सप्लेन दैट से yes, French Revolution had a role in emerging the nationalism in Europe. A centralized administrative system। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देंगे कि जब हम किसी राष्ट्र की बात करते हैं कि एक राष्ट्र कब बनता है? जब वहाँ पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो। ऐसा नहीं कि हर स्टेट या हर यूनिट अलग अलग काम कर रहा हो। नहीं, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए। तब दैट्स द आइडेंटिफिकेशन
That's the sign, that is the symbol of a nation. So a centralized administrative system was put in place, and it formulated uniform laws for all citizens within its टेरिटरी. अगला जो हमें पहचान मिली है नेशनलिज्म की, वो क्या होता है कि एक यूनिफाइड लॉ होता है. इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द सिटीजन, मतलब सभी सिटीजन्स के लिए जो लॉ होगा वो सेम होगा. मतलब ऐसा नहीं कि किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग. जैसे इंडिया के अंदर है, हमारे यहाँ पे भी कमोबेश यही चीज़ें हैं कि द यूनिफॉर्म लॉ सिस्टम इज़ देयर, मीन्स हमारे पास इक्वालिटी बिफोर लॉ है. मतलब कि सभी जो भी कानून है वो सभी के लिए समान है, चाहे हम किसी भी, इट डजेंट मैटर विच कम्युनिटी यू बिलोंग टू, इट डजेंट मैटर विच कास्ट यू बिलोंग टू, इट डजेंट मैटर विच रिलीजन यू बिलोंग टू. मतलब आप चाहे जिस भी सोशल बैकग्राउंड से, इफ देर इज़ अ रूल, so it means that you have to follow that. It doesn't matter who you are. You can be a prime minister, you can be a common man of the society. The rules will remain the same. The same thing happened in France as well. So a centralized administrative system was put in place, and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. Internal custom, ये अगला पॉइंट, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड. मतलब जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए टैक्सेस देने पड़ते थे, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, वो सब खत्म कर दिया गया. एंड a यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स was adopted. एक यूनिफॉर्म सिस्टम वेट के लिए और मेजर्स के लिए अडॉप्ट किया गया. Regional dialects were discouraged, and French, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the नेशन. ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि लैंग्वेज जो है वो सेम होना चाहिए. लैंग्वेज के अंदर ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए. सो जैसे जो फ्रांस के अंदर जब नई गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने रीजनल डायलेक्ट्स, मतलब जो रीजनल लैंग्वेजेस थे उसको डिस्करेज किया, उसको ख़त्म किया, और उसके जगह फ्रेंच बोलने को लेकर लोगों को इनकरेज किया कि फ्रेंच विच वॉज स्पोकन इन पेरिस नाउ बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द नेशन. सो ये these were the things, this is how we can say that yes, French Revolution had a role in developing the नेशनलिज्म इन यूरोप. क्योंकि इसके बाद यही चीज़ें फ्रांस से उठ के फिर बाकी कंट्रीज़ में गई. अब हम आगे वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद क्या हुआ फ्रांस के अंदर. 1791 में ये नेशनल असेंबली बनी थी. उसके बाद कुछ 7 से 8 सालों तक इन लोगों ने वहाँ पे रूल किया, वहाँ पे शासन किया. पहले नेशनल असेंबली बनी, हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा है. उसके बाद फिर रॉबेस्पियर का उदय हुआ, और उसके बाद फिर एक डायरेक्टरी रूल है. डायरेक्टरी रूल में जिसके अंदर कुछ बॉडी थी जो एग्जीक्यूटिव्स की, जिनके पास पावर शेयर किया गया. मतलब वो चाहते थे कि पावर जो है किसी एक हाथ में ना रह के, जैसे रॉबेस्पियर के हाथ में जब सारी सत्ता आ गई थी, सारी पावर आ गई थी, सो ही बिकेम अ डिक्टेटर. और उसने फिर गिलोटाइन वाला सारा सिस्टम किया, गुलेटीन किया लोगों को जिनको भी उसने पसंद नहीं किया. इसके बाद फिर डायरेक्टरी रूल बना फ्रांस के अंदर. एंड देन एट द एंड वो लोग भी आपस में लड़ के उस पूरे सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, दे कुड नॉट हैंडल. तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के वहाँ पे नेपोलियन की सरकार बनी. नेपोलियन ही अगेन इस्टेब्लिश्ड मोनार्की इन फ्रांस. ये ध्यान रखना हमें कि नेपोलियन कब बना फ्रांस का रूलर, वो बना 1799 में. You need to remember this, that in France in 1799 Napoleon became the ruler. He exploited the political situation in France. The directory rules, he tried to exploit the flaws in the political hands of that time in France, and he grabbed the power. अब हमें देखना है कि 1799 में नेपोलियन आ गया सत्ता में फ्रांस के. ठीक है, ये हमने समझ लिया. अब नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन वापस से एक मोनार्की सिस्टम लेकर आया. लेकिन ये मोनार्की सिस्टम पहले जैसा नहीं था, पहले जैसा बिल्कुल नहीं था. इसमें उसने बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेकर आया वो, जिसको हम लोग मानते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से, या सिविल कोड ऑफ नेपोलियन, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, या इसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं. ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ जनरली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स ऑल्सो, व्हाट वाज द नेपोलियनिक कोड. तो मतलब इसके अंदर हम देखेंगे कि नेपोलियन ने किस किस तरह के रिफॉर्म्स किए फ्रांस के सोसाइटी में. सो
civil code of I have already underlined this, so you can focus on your textbook. So civil code of 1804, usually known as the Napoleonic Code, did away with all the privileges based on birth. ये सबसे पहला पॉइंट क्या मिला हमें कि उसने जो भी बर्थ के ऊपर बेस्ड सारी प्रिविलेजेस थी, सारे विशेषाधिकार थे लोगों को, वो सब उसने ख़त्म किया। सबसे पहला काम किया उसने। दूसरा काम क्या किया, ही इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, उसने एक लॉ, सबके लिए एक समान कानून बनाया। कोई कोई चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए एक जैसा कानून बना। एंड ही सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि पहले नहीं था राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब जिसका जो प्रॉपर्टी पहले कोई भी आके छीन सकता था, कोई भी मैनर या कोई भी लैंडलॉर्ड, बट नाउ राइट टू प्रॉपर्टी अब सभी को मिला। उसके बाद क्या हुआ, दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखनी कि जो ये नेपोलियनिक कोड था ये खाली फ्रांस तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके अलावा, फ्रांस के अलावा उसने जहाँ पे भी और अपना टेरिटरी कायम किया है, जहाँ पे भी अपना अधिकार किया था, उन सभी कंट्रीज़ के अंदर भी इन नेपोलियनिक कोड को लागू किया गया। सो इट वॉज अप्लाइड टू ऑल दी कंट्रीज़ और ऑल दी रीजन्स ऑक्यूपाइड बाई नेपोलियन। सो ही एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। इन द डच, अब कौन कौन से थे वो, इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्ज़रलैंड, इन इटली एंड जर्मनी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड, अगला पॉइंट क्या हमें मिल रहा है कि नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाइड किया, सारी यूनिट्स को सिंप्लीफाइड किया। पहले पूरा जो कॉम्प्लिकेटेड सब सिनेरियो था उस सबको ख़त्म करके एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसने डेवलप किया या इवॉल्व किया। उसके बाद ही अबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीसेंट्स फ्रॉम सर्वडॉम एंड मेनोरियल ड्यूज़। मतलब उसने फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म किया, जो सामंतवाद था। फ्यूडल सिस्टम हमें पता है क्या होता है। फ्यूडल सिस्टम में जो लैंड ओनर्स होते हैं, मतलब वो किंग के अंडर में काम करते हैं, एंड पीसेंट्स का बहुत हद तक एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वो लोग। तो ये फ्यूडल सिस्टम को भी उसने पूरी तरह से ख़त्म किया। इसके अंदर जो पीसेंट्स थे उनको फ्री किया, किससे, सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यू से। उनको जितने पैसे देने थे इन मैनर्स को, सर्वडम का मतलब होता है जो बाउंडेज लेबर होता है, जो जिनके पास लैंड नहीं होता है वो सर्वडम बन जाते हैं। मतलब वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स बन जाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स बन जाते हैं। ये सारा सिस्टम उसने ख़त्म किया। फिर इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। मतलब शहरों में और दूसरे छोटे गांवों में क्या किया उसने, जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस मतलब जो सोशल रिस्ट्रिक्शंस थे, जो सोसाइटी में रिस्ट्रिक्शंस थे, वो सब उसने रिमूव किया। पीपल फेल्ट फ्री इन नेपोलियनिक कोड, थ्रू द नेपोलियनिक कोड। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को और इम्प्रूव किया। पीसेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन enjoyed a new found freedom. Businessmen, small scale producers of goods in particular, began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another region. So this is how we saw that how Napoleonic Code helped people, especially the business officials, the middle class, दैट वॉज इमर्जिंग। एंड हम लोगों ने फ्रेंच रिवोल्यूशन में भी पढ़ा है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कैटेगरी निकल के आई थी वो थी मिडिल क्लास। उनकी वजह से जो नेशनलिज्म का इमर्जेंस हुआ उसमें भी मिडिल क्लास का बहुत बड़ा रोल था, जो कि कंजर्वेटिज्म के बहुत खिलाफ थे। वो लोग चाहते थे फ्री एटमॉस्फेयर जिसमें उनको ट्रेड करने के लिए माहौल मिले और टैक्स फ्री एक इन्वायरमेंट मिले। ऐसा नहीं कि एक स्टेट में हम टैक्स दे रहे फिर दूसरे स्टेट में जा रहे फिर हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेशनलिज्म के अंदर जो मिडिल क्लास था उसका बहुत बड़ा रोल था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये दो चीज़ें पढ़ी। एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या रोल था, और दूसरा हमने पढ़ा सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसके बाद मैं आप लोग के नया वीडियो प्रिपेयर करूँगा जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से इटली एंड जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, और आगे की बातें हम आगे की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।